نقلی شہزادہ پارٹ 3۔ نیا شاگرد پرانے استاد۔ صبح سویرے نوری کی آنکھ کھلی، ابھی کچھ اونگ باقی تھی۔ اسی اونگ میں پکارا، ماں کیا اذان ہو گئی؟ حضور بیگم جاگ رہی تھیں، وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے دیکھا 20 اٹھلاتی ہوئی آ رہی تھیں اور یہ شعر گنگنا رہی تھیں، خبر صبح ہونے کی میں لا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کی میں آ رہی ہوں۔ حضور بیگم نوری کو سمجھانے اور ہوشیار کرنے لگیں کہ تم تو شہزادے نور ہو، ابھی لیٹے رہو، 20 آ رہی ہیں، وہ تمہارے گالوں کو چھوئیں گی تب آنکھ کھولنا۔ 20 اپنا پلو رہلاتی آئیں، انہوں نے شہزادے نور کو جگایا اور اپنا شعر گنگناتی چلی گئیں۔ 20 کے بعد بھی شبنم آئیں، انہوں نے حمام کرایا۔ نوری کٹھ پتلی کی طرح شبنم کے اشاروں پر کام کر رہا تھا۔ شبنم بھی گئیں تو بہار بیگم آ گئیں، انہوں نے شہزادے کو کپڑے پہنائے، گلے میں ہار ڈالے، پھول نچھاور کیے۔ اب نرگس بی کی باری آئی، نرگس نے آنکھوں میں سرما لگایا، پھر غنیچہ ذہن، نسرین اور نسترن ہنستی مسکراتی آئیں۔ نوری ان کے ساتھ حضور بیگم کی سلامی کو گیا۔ سلامی کے بعد نوری نے حضور بیگم سے 2 منٹ کی اجازت لی، وہ اندر گیا، وہاں جا کر اس نے جلدی چھپ کر نماز پڑھی، پھر آیا، حضور بیگم کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اس کے بعد حضور بیگم نے ساری عورتوں کو پھر ہٹا دیا اور نوری کو بتانے لگیں، اب تم خان بابا کی بارادری میں جاؤ گے، وہیں امام یحییٰ فلسفی سے تعلیم حاصل کرو گے، پھر شہاب الدین چابک شہ سوار سے شہ سواری کی مشق کرو گے، اس کے بعد مہابت خان سے سپہ گیری سیکھو گے، دوپہر کا کھانا خان بابا کے ساتھ ان کی بارادری میں کھاؤ گے، شام کو زعیم پہلوان کے اکھاڑے میں پہلوانی کرو گے، ہر جگہ زرغان خان کے جاسوس تمہارے پیچھے لگے ہوں گے، بڑی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تم شہزادہ نور ہی بنے رہنا اور دیکھو کہیں دب کر بات نہ کرنا، سمجھے؟ جی امی حضور، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، وہی بیڑا پار کرانے والا ہے۔ شہزادوں کی زندگی بھی کیا ہے، ایک حوالات ہے، اس وقت یہ کرو، اس وقت وہ کرو، نہ کھیل کا وقت نہ آزادی، اس سے تو ہماری دیہاتی زندگی ہی اچھی ہے، جب جو چیز چاہا کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں نہ کوئی جاسوس نہ کوئی کوتوال۔ شاہ بیگم اور نوری میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لونڈی نے حاضر ہو کر کہا، قربان جاؤں خان بابا تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر نوری حضور بیگم کو سلام کر اٹھا، بیگمات کے ساتھ پھاٹک تک گیا، سب کی دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا، باہر نکلا، خان بابا کو سلام کیا، سائنسوں نے گھوڑا پیش کیا، نوری سوار ہوا، خان بابا اسے لے کر بارادری کی طرف چلے، پیچھے جانثار خان، قربان خان اور 2 درجن ہتھیار بند سوار ہو لیے۔ بارادری میں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ کو بیٹھے پایا، چوغا پہنے ہوئے، صافہ باندھے ہوئے، پیشانی پر سجدے کا نشان اور چہرے پر خوبصورت سفید داڑھی۔ نوری سمجھ گیا یہی امام یحییٰ ہیں۔ اس نے جاتے ہی السلام علیکم کہا۔ امام صاحب شہزادے کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے شہزادے کو السلام علیکم کہتے ہوئے سنا تو حیران رہ گئے، شہزادہ نور تو روز آداب عرض کرتا تھا، آج اس نے السلام علیکم کہا، وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور خان بابا کا منہ تکنے لگے۔ خان بابا چپ بیٹھے رہے، نوری پریشان تھا، امام صاحب نہ جانے کون سی کتاب پڑھوائیں گے اور پچھلے سبق کے بارے میں خدا جانے کیا سوال کر بیٹھیں، اور جب کتاب نہ پڑھی جائے سکے یا سوال کا جواب نہ دیا جا سکے تو پریشانی ہو اور پھر پول کھلے۔ وہ سوچنے لگا، اللہ کسی طرح لاج رکھتا ہے۔ امام صاحب نے ایک موٹی سی کتاب اٹھائی، اسے کھولا، بولے شہزادے صاحب کل کا سبق دہرا لیجئے، یہ بتائیے کہ ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ نوری کیا جانے ریاست اور اس سے کیا معلوم کہ ریاست پر قبضہ کیسے ہوتا ہے، وہ جواب دینے میں جھجکا، لیکن پھر سنبھلا، اسے اپنی کتاب کا سبق مسلمان کیا کریں یاد آ گیا، بس طوطے کی طرح رٹنے لگا، میں نیکیاں پھیلاؤں گا، برائیاں مٹاؤں گا، اللہ کا دین قائم کروں گا اور یہ بچکانا جواب سن کر امام صاحب مسکرانے لگے، شہزادے صاحب میں نے تو آپ کو بتایا تھا آپ رعایا کو خوش رکھیں گے، لوگوں کے آرام کے لیے سڑکیں، کنویں اور سرائے بنوائیں گے، مدرسے کھلوائیں گے، چوروں اور ڈاکوؤں سے لوگوں کو بچائیں گے اور ایسے ہی بہت سے کام کریں گے، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ تو چھوٹے بچے تعلیم الاسلام کی کتاب میں سوال جواب کے طور پر رٹا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے یہ کہا تو نوری گھبرانے لگا، ادھر خان بابا کھٹکے کہ نوری نہ جانے کیا بے تک اڑا رہے، پھر انہوں نے کہا، امام صاحب آج پڑھائی ختم کیجیے اور ایک کام کیجیے، شہزادہ ابھی شہ سواری سیکھنے جائے گا، آپ ذرا تشریف رکھیں، آپ سے کچھ مشورہ کروں گا۔ حاضر ہوں، امام صاحب نے جواب دیا۔
और उठकर एक तरफ बैठ गए। खान बाबा ने शहाबुद्दीन चाबक सवार को वक्त से पहले बुलवा लिया। वह आया, उसने नूरी को साथ लिया। घोड़ दौड़ के मैदान में पहुंचा। वहां कई साइज घोड़ों को लगामे थामे खड़े थे। शहाबुद्दीन ने एक साइज को इशारा किया। उसने एक जंगी घोड़ा पेश किया। नूरी ने जंगी घोड़े को देखा। घोड़ा उससे दुगना ऊंचा था। नूरी घबराया कि इस पर कैसे सवार हो सकेगा। ये वक्त उसके लिए बड़ा कठिन था, मगर मरता क्या ना करता वाली मिसाल। वे अल्लाह का नाम लेकर घोड़े के पास पहुंचा। घोड़े ने गर्दन फेर कर उसे सूंघते ही बितक गया। जमीन पर टाँपे मारने लगा। शहाबुद्दीन ने देखा तो बढ़कर घोड़े की गर्दन थपथपाई। गाजी, अपने शहजादे को पहचानो, शरारत ना करो। फिर लगाम पकड़ ली और शहजादे से कहा, हुजूर सवार हो। नूरी समझ गया मौत का सामना है। रकाब पर पैर रखकर जीन पर जा बैठा। जैसे ही वे जीन पर बैठा, घोड़ा अभी अगली टांगे उठा कर पटकने लगा। शहाबुद्दीन ने फिर डांटा, गाजी, मारे चाबुकों के होश ठिकाने कर दूंगा। डांटने के साथ ही गर्दन सहलाने लगा। घोड़े ने गर्दन मोड़कर शहजादे को देखा। नूरी ने उसके सर पर हाथ फेरा। चमकारा तो गाजी संभला। शहाबुद्दीन ने लगाम छोड़ दिया और उछलकर दूसरे घोड़े पर बैठ गया। लगाम छोड़ते ही गाजी सरपट हो गया। नूरी गाजी के लिए नया सवार था। गाजी तो गाजी, शहजादे के सिवा आज तक उस पर कोई सवार ही नहीं हुआ था। आम घोड़े अपने सवार की बू पहचानते हैं। गाजी के पहलुओं में नई पिंडियां लगी तो भाग पड़ा। नूरी समझ गया, आज घोड़ दौड़ के मैदान से मेरी लाश जानी है। वह दिल ही दिल में दुआ करने लगा। दुआ करने से इसका दिल मजबूत हुआ। उसने जी में कहा, नूरी, जब तू एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछल जाता है, जब तू एक शाख पकड़कर ऊपर वाली शाख उचक जाता है, जब तू गुलाब घोसी की भैंस की पीठ पर खड़ा होकर उसे दौड़ा देता है, तो तेरे लिए क्या मुश्किल है। नूरी का डर कुछ कम हुआ। अब वह जम कर बैठा। उसने लगाम खींची, मगर गाजी उससे रुक सकता था। वह तो बेतहाशा तर्राज से फिर रहा था। शहाबुद्दीन समझा शहजादा दुल्की और कदम छोड़कर सरपट में दिलचस्पी ले रहा। उसने भी अपना ताजी उस पीछे डाल दिया। नूरी का ये हाल उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह गाजी के रहम करम पर था। शहाबुद्दीन ने कुछ इशारे भी किए, मगर नूरी को अपना ही होश न था। वह इशारों को क्या समझता। उसने देखा कि गाजी एक बड़े दरख्त की तरफ बढ़ रहा है। नूरी की पसली फड़की। उसने दरख्त के एक टहनी को ताका। जैसे ही गाजी दरख्त के नीचे पहुंचा, नूरी बंदर की तरह उचका और टहनी पकड़कर उस पर जा बैठा। शहाबुद्दीन घबरा गया। उसकी जुबान से अरे निकला। उसने अपना घोड़ा रोका, शहजादे को देखने लगा। इधर गाजी ने देखा कि सवार गायब है तो लौट पड़ा। शहाबुद्दीन नूरी की यह हरकत देखकर घबरा गया। उसने कहा, शहजादे, हुजूर, खुदा न करे अगर दुश्मनों को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तुम परवाह ना करो, नूरी ने जवाब दिया। तो हुजूर, आज यही काफ़ी है, जो तुम कहो, कहकर नूरी दरख्त से उतर आया। उसके सामने फालूदा पेश किया गया। उसके बाद वहीं से वे महाबत खान के असलहे खाने ले जाया गया। महाबत खान पहले से मौजूद था। उसने सलामी दी और बढ़कर तलवार उठा ली। नूरी ने भी एक तलवार ली। वह हुसैनी पहलवान के अखाड़े में तलवार, खंजर और सेफे वगैरह के हाथ निकाल चुका था, मगर घबरा रहा था। तलवार के सिपाहियाना वार और जंगी पैतरे वह क्या जाने। महाबत खान ने बेतुके पैतरे और देहाती वार देखे तो हाथ रोक लिया। शहजादे, हुजूर, शरारत करोगे तो चोट खा जाओगे। महाबत खान, जंगली लोगों का सामना हो तो क्या करना चाहिए। महाबत खान मुस्कुराए बोला, हुजूर, जंगली ज्यादातर तीर मारते हैं या फिर कमंदे फेंक कर जकड़ लेते हैं। दाजो महाबत खान पर कमंदे मारे। कमंदों के लच्छे चारों तरफ से उस पर गिरे। महाबत खान झट लगा, फिर भी 11 कमंद अंदाजों ने उसके पांव उलझा लिए और पूरी ताकत से खींचा। महाबत ने बायां हाथ जमीन पर टेका, फिर चित होकर तलवार मारी तो कमंदे टूट गए। 2 फिर भी बाकी रही। उसने बाएं हाथ से पकड़ लिया और झटका दिया तो दोनों कमंद अंदाज घोड़ों से गिरकर जमीन पर आ रहे। महाबत खान हंसने लगा। उसने कमंदें खोल दी। नूरी ने यह सब देख रहा था। वह मशक करने लगा, लेकिन वह एक भी ना काट सका। उल्टे उसका गला बुरी तरह फंस गया। महाबत खान ने हंसकर कहा, अच्छा हुजूर, फिर अंधा क्या चाहे 2 आंखें। नूरी खुश हुआ, चलो बला टली। उसके बाद नूरी खान बाबा के साथ बारादरी गया। वहां उसने खाना खाया। वहीं उसने दोपहर भर आराम किया। खान बाबा अब भी उसे शहजादों के तरीके सबक की तरह पढ़ा रहे थे। नूरी ध्यान से सुन रहा था। शाम हुई तो ज़ईम पहलवान के
अखाड़े का सामना था, वहाँ भी नूरी कामयाब ना रहा। ज़ईम पहलवान किसी कदर बदमिजाज भी था। जब नूरी देहाती दांव करता तो ज़ईम पहलवान ज़बान से कुछ ना कहता, मगर गुस्से में ऐसा दांव मार देता कि नूरी कभी चित और कभी पट गिरता। एक बार जब नूरी का पैतरा छूट पड़ा तो ज़मीन ने हवाई मार दी, लेकिन फिर डरा खुद ही पकड़कर बढ़कर हाथों पर रोक लिया। नूरी समझ रहा था कि पहलवान उसे दांव सिखा रहा है। वह सब फिसल ले गया। खुदा खुदा करके दिन भर का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मगरिब के बाद नूरी हुजूर बेगम के पास पहुंचा दिया गया। खान बाबा की रिपोर्ट भी पहुंची। हुजूर बेगम ने मुलाकात फरमाई, मुस्कुराई और फिर सोच में पड़ गई। कबड्डी और दंगल। शहजादा नूर बकरियां लेकर जंगल को गया। वहां बहादुर और जलाल में तकरार हो रही थी। जलाल कह रहा था कि तू फिर बदकर हो। बहादुर का जवाब था, तो क्या मैं तुझसे किसी बात में कम हूँ? बहादुर और नूरी रास्ता देख रहा था, इसलिए ज़रा दब कर बात कर रहा था। अब जो उसने नूरी को आते देखा तो कड़क कर बोला, अच्छा तो आ जा मैदान में, आज हो जाए कबड्डी। और फिर नूरी रहमतुल्लाह, कादिर और दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उधर जलाल ने पीरू और दूसरे लोगों को आवाज़ दी। मैदान में पानी की लकीर खींची गई। जलाल और बहादुर अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर मैदान में आ गए। शहजादे ने बहादुर के कान में कहा, जैसे मैं कहूँ उसी तरह अपने खिलाड़ियों को लड़ाओ। बहादुर को नूरी पर भरोसा था। उसने कहा, जैसे तुम कहो। शहजादे ने कमान की शक्ल में अपनी पाली के पीछे लकीरें खींच दी और उसके कान में कह दिया कि इस पर खड़े हो जाओ। जलाल का खिलाड़ी छूने आए तो गोल घेरा बनाकर एक साथ झपटो। दाएं तरफ आए तो बाएं तरफ के लड़के बढ़े और बाएं तरफ आए तो दाहिनी तरफ के। गांव में इस तरकीब से कबड्डी ना खेली गई थी। बहादुर ने बहुत पसंद किया और दूसरी तरफ जलाल के खिलाड़ी रोज की तरह आगे पीछे गड़मड़ खड़े थे। अब जलाल ने गिप्पल लिया। बोलो चिट या पट? बहादुर ने कहा चिट। जलाल ने गप्पल उछाला। गप्पल चित गिरा। बहादुर ने या अली का नारा मारा और खुद बढ़ा। शहजादे ने उसे रोका और उसके कान में कहा, बहादुर सबसे पहले तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तुम हमारे मीर हो, अगर कहीं तुम मारे जाओगे तो हमारे खिलाड़ियों की हिम्मत टूट जाएगी। किसी और को भेजो। नूरी तो 2-3 दिन से बड़ा समझदार हो गया है, बहादुर ने मुस्कुराकर कहा और फिर कादिर को इशारा किया। कादिर अपनी जगह से उछला, पाली की लकीर पर जा खड़ा हुआ और एक नज़र जलाल के खिलाड़ियों पर डाली। फिर कबड्डी में बोला, डम 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 डमड़ू बोले, भन 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 भंगड़ू बोले, भोंदू तेरी हड्डी बोले, कादिर आज कबड्डी बोले। उसके बाद उछला, कबड्डी कबड्डी कहता आगे बढ़ा और जलाल की पाली में पैंतरे बदल कर उछलने लगा। उसने दोनों हाथ आगे फैला दिए और झुक कर छूने लगा। जलाल ने साथियों को पुकारा, लेना जाने ना पाए और खुद लेटकर चाहा कि कादिर की टांग ले, लेकिन कादिर झट उछल कर गया और मुड़कर चाहा कि जलाल को छू ले। दूसरे लड़के पीछे से दौड़ पड़े। बहादुर पुकारा, बच के, और कादिर जलाल को छूते छूते घूम गया। दो को छूकर जो उछला तो अपनी पाली में आ गिरा। वह मारा। बहादुर पुकारा। उसने कादिर की पीठ ठोकी और अपने साथियों को लेकर कमानदार लकीर पर जा खड़ा हुआ। जलाल के 2 खिलाड़ी मर गए थे। दोनों जाकर अलग बैठ गए। अब जलाल ने भोंदू को इशारा किया। वह अपनी जगह से उछला और लकीर पर रुका। खम ठोक कर बोला, भू भू भोंदू बोले, तो तू तोंदू बोले, नूरी तेरी खड्डी, भोंदू आज कबड्डी बोले। उसके बाद कूदा और कबड्डी कबड्डी बोलने लगा। नूरी पुकारा, घेरा डालो। अपनी लाइन के किनारे से बढ़ा। बहादुर के खिलाड़ियों का घेरा फैला। भोंदू नूरी को छूने बढ़ा और दूसरे गिराने पर रहमतुल्लाह बढ़कर लेट गया और चाहा कि भोंदू की टांग ले कि जलाल बच के भोंदू होशियार हो गया। वह नूरी की तरफ से मुड़कर रहमतुल्लाह को छूने झुका ही था कि इसकी कमर पर आ गिरा। इधर रहमतुल्लाह मछली की तरह फिसला और उसने भोंदू की टांग पकड़ ली। फिर खींचा तो भोंदू धड़ाम से गिरा और उसकी सांस टूट गई। बहादुर खुश हो गया और उसने नूरी और रहमतुल्लाह को खूब शाबाशी दी। रहमतुल्लाह कह रहा था, अगर नूरी पीछे से ना आता तो मैं मर ही चुका था। भोंदू अलग जाकर बैठा तो अब बहादुर ने नूरी को इशारा किया। शहजादा नूर गांव की कबड्डी के बोल क्या जाने। उसने अपनी किताब का ये शेर पढ़ा, आना मन बाशम की रोज जंग बीनी पुश्त मन, आ मनम का नदर म्याए खाक व खून बीनी सिरे। नूरी के बोल कोई ना समझा। दोनों तरफ के लड़के मुस्कुराने लगे और समझे नूरी शरारत कर रहा है। नूरी पाली की लकीर पर जा पहुंचा था। शाही खिलाड़ी अखाड़े का पट्टा ज़ईम पहलवान
کا शागिर्द, एक से एक दाव और घात जानने वाला, फौजी नज़र रखने वाला। उसकी नज़र एक तरफ पाली पर और दूसरी तरफ जलाल पर, और उसने ऐसे चक्कर दिए कि जलाल को जलाल आ गया। एक बार जब नूरी आगे बढ़ा तो जलाल इसकी टांग लेने झुका। नूरी यानी शहजादे ने दिखाने को टांग इसकी तरफ बढ़ा दी और दोनों हाथ पीछे टेक कर बैठ गया। और असल में कलाबाजी का दांव बांध चुका था। गांव के लड़के ये घाते क्या जाने। बहादुर तो घबरा ही गया था कि नूरी ने ये क्या किया। इधर जलाल नूरी की टांग पर झपटा कि पकड़ ले कि शहजादे ने कलाबाजी खाई, और कलाबाजी खाने में पांव जोड़ कर चलाए तो जलाल की थोड़ी पर लगे पड़े। वह गरीब चीख मार कर गिरा। शहजादा नट की तरह हवा में कलाबाजी खाता अपनी पाली में आ गिरा। बहादुर की जुबान से जोश में वह मारा निकल गया, लेकिन जलाल बुरी तरह गिरते देखकर घबरा गया। जलाल की थोड़ी पर शहजादे की भरपूर चोट पड़ी थी। इसने अपनी थोड़ी पकड़ ली और उस पर बेहोशी सी छाने लगी। अब तो शहजादा भी डरा। दिल ही दिल में पछताने लगा कि नाहक जलाल पर कलाबाजी का दांव मारा। जलाल की बुरी हालत देखकर बहादुर ने खेल खत्म कर दिया। जलाल को उठाकर दरख्त के नीचे ले गया। अब कोई उसे हवा दे रहा था, कोई पानी के छींटे मार रहा था। शहजादा दिल में शर्मिंदा था ही। वह आगे बढ़ा। उसने लड़कों को हटा दिया, जलाल को पीठ की तरफ से पकड़ा और अपनी हथेलियों से उससे कमपट्टी सहलाने लगा। इस तरह जलाल की आंखों का अंधेरा दूर हुआ। उसने पानी मांगा, मगर शहजादे ने मना कर दिया। लड़कों से कहा, दौड़ कर करौंदे ले आओ। रहमतुल्लाह पेरू और कई लड़के दौड़ गए और बहुत से करौंदे ले आए। शहजादा नूर ने दो दो चार चार करके जलाल को करौंदे खिलाए। जलाल के दम में दम आया। बहादुर ने पूछा, जलाल दर्द कहाँ है? उसने थोड़ी पर हाथ रखा। बहादुर ने मदार का दूध मंगाया। दूध जलाल की थोड़ी पर लगाया गया। इस तरह घंटा पौन घंटे की दौड़ धूप करने के बाद जलाल उठ खड़ा हुआ। शहजादा नूर ने उससे कहा, भाई जलाल, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं समझता था तुम मेरा दाव बचा लोगे। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। बहादुर, जलाल और तमाम लड़के दंग रह गए। अरे ये नूरी कैसा तहजीबदार हो गया है। जलाल पर इतना प्यार तो कभी ना था। इसकी तो हमेशा लाख डांट ही रहती थी। किसी ने सच कहा है, मीठे बोल और हमदर्दी की बातें अपना असर ज़रूर दिखाती हैं। शहजादे ने माफ़ी का नाम लिया तो जलाल का दिल पिघल गया। बोला, नूरी तुम बड़े बहादुर और नेक हो। मैं तो तुमको समझाना था, तुमने मुझको भाई कहा। देखो अब भाई को भूल ना जाना। और अब मैं अपनी टोली ख़त्म करके बहादुर की टोली में शामिल होता हूँ। तमाम लड़के खुश हो गए। कोई किसी को गोदी में उठा रहा था, कोई किसी से गले मिल रहा था। सारे लड़के आपस में मोहब्बत से बातें करने लगे। नूरी के दो नर्म बोलों ने गांव के दो लौंडा पार्टियों को आपस में मिला दिया। इनमें ऐसा एका हो गया जिसे कहते हैं एक जान दो काली। लड़के तो वह बहुत थे, लेकिन थे वह एक। शहजादा नूर जंगल से लौटा तो आज उसने घर वालों को सलाम किया। सलाम भी कैसे, इसने अस्सलामु अलैकुम कहा। फिर जब ज़हूरी खेत से आया तो उसे भी अस्सलामु अलैकुम कहा। ज़हूरी खुश हो गया। माँ से बोला, माँ दूध औंट रहा है ना, भैया को दूध अब ज़्यादा दो, मैं इसे धोकर से कुश्ती कराऊंगा। और फिर नूरान से कहा, जा रही दूध ला। नूरान नूरी से रूठी हुई बैठी थी। भैया जंगल से करौंदे नहीं लाया, मैं भी इसका काम नहीं करती। शहजादा समझ गया कि नूरी हर रोज़ नूरान के लिए कुछ न कुछ लाता था। अरे ले शलोकी की जेब में कुछ करौंदे पड़े थे। नूरान दौड़ी आई, फिर दौड़कर दूध लाई। माँ ने दूध में रोटी मल दी। शहजादे ने रोटी खाई और घर के धंधों में लग गया। ज़ोहर व असर की नमाज पढ़ने गया। गलत सलत नमाज पढ़ी तो मियाँ जी ने तो कुछ ना कहा। वह जानते थे कि नूरी नहीं शहजादा नूर है, मगर लड़कों ने उसे खूब बनाया। मगरिब के बाद ज़हूरी के साथ अखाड़े पहुंचा। ज़हूरी ने हुसैनी पहलवान से कहा, उस्ताद हैदर पहलवान आए दिन कुश्ती मांगता है, एक दिन लड़वा दो अपने पट्ठों को इसके पट्ठों से। अभी नहीं, ज़रा रुके रहो। हुसैनी पहलवान ने उसे जवाब दिया। फिर नूरी से कहा, जा पट्ठों को जोर करा। शहजादा लंगोट बांधकर अखाड़े में उतरा, पट्ठों को जोर कराने लगा। तो हुसैनी ने उसके जाव पैतरे देखे तो बोला, अबे नूरी, तूने ये दाव कहाँ से सीखे? उसके जवाब में शहजादे ने झूठ बोल दिया, आप ही ने तो बताए थे। उस झूठ पर हुसैनी खुश हो गया। उसने शहजादे से कहा, अच्छा अब मुझसे जोर कर। शहजादा हुसैनी से जोर करने लगा। बनकर बोला, उस्ताद सहराबी दाव कैसे लगाऊं? हुसैनी ने कहा, तू मुझे धोबिया पाट पर लाद तो बताऊं। शहजादे ने हुसैनी की पीठ पर लादा, एक हाथ उसकी गर्दन पर डाले और दूसरे से उसका बाजू जकड़ा। धोबिया पाट बन चुका तो हुसैनी बताने ही वाला था कि शहजादे ने सोहराबी दाव मार दिया। हुसैनी तो बताने जा रहा था, वह क्या जानता था कि नूरी सहराबी मार देगा। धड़ाम से आकर शहजादे के आगे चित गिरा। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने उठकर 2-3 घुस्से रसीद किए। बदतमीज, मुझसे गुस्ताखी। शहजादा चौंका, उससे भूल हो गई। उसने खुशामद शुरू कर दी, उस्ताद माफ़ कीजिए, भूल गया
अबे भूल कैसी, ये बता, तुझे सोहराबी किसने बताई? उस्ताद, आप ही ने तो एक दिन ज़ुबानी बता रहे थे, मैंने रमज़ानी पर मशक कर ली। शहजादे ने झूठ बोल दिया और हुसैनी फिर खुश हो गया। उसने ज़हूरी से कहा, जाओ हैदर पहलवान से कह दो हमारे पट्ठों से अपने पट्ठे लड़ा ले, मगर शर्त ये कि जिसके पट्ठे जीते हुए गांव भर का उस्ताद माना जाएगा। ज़हूरी चैलेंज लेकर गया, हैदर पहलवान से कहा। उसने शर्त लगाई, गांव भर का उस्ताद होने के ये ज़रूरी है कि मेरा और हुसैनी का मुकाबला हो। तब ज़हूरी ने ये भी आकर कहा तो हुसैनी अपनी बाहों को देखने लगा। असल बात ये थी कि हुसैनी अब 50 का होने वाला था। इसका बदन अब ढीला हो चला था और हैदर था 40 बरस का जवान। हुसैनी ज़रा हिचकिचाए तो शहजादे ने कहा, उस्ताद मंजूर कर लीजिए। अबे तू क्या जाने, हुसैनी ने नूरी को डांट दिया और फिर खुद सोचकर मंजूर कर लिया। लीजिए। बरसात के बाद जुमे के दिन मुकर्रर हो गया। गांव में एक शोर मच गया। दोनों पहलवान अखाड़े की बाजी लगाने पर तुल गए। दोनों के पट्टे तैयार करने लगे। ज़हूरी ने गैया का दूध पूरे का पूरा नूरी के लिए छोड़ दिया। आधा पाव मालिश के लिए रोज़ाना देने लगा। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तो ज़हूरी को ही थी। मुकाबले का दिन आ गया। वह तैयार हो चुका था। अखाड़े पर सारा गांव उमड़ आया था। करामत भी अपने बेटे की कुश्ती देखने आया था और जम कर बैठा था। झपट्टा शाह भी आया था। उसने अपने बेटे पेरू के बाजू पर तावीज़ बांध रख दिया था। मियाँ जी भी तशरीफ़ लाए। मियाँ जी को देखकर गांव वालों ने भीड़ में रास्ता दे दिया, उन्हें ख़ास जगह बिठा दिया। झपट्टा शाह को छोड़कर सभी तो इनकी इज्जत करते थे। पहले छोटी छोटी कुश्तियाँ, रहमतुल्लाह पीरू की कुश्ती हुई। फिर पीरू तावीज़ बांध पहने था, लेकिन रहमतुल्लाह से बुरी तरह चित्त हो गया। आखिर में हैदर की तरफ से धौकल और हुसैनी की तरफ से नूरी अखाड़े में कूदा। करामत धौकल को देखकर घबराया। उससे कुछ कहने के लिए बेटे को बुलाया तो शहजादे ने कहा, बाप परवाह ना करो, ये तो भैंसा है, भैंसा जरा देर में हाँपने लगेगा। धौकल ने अखाड़े की मिट्टी ली, बाजुओं पर मरी, खम ठोके, पाला ठोका। शहजादा पलट पड़ा। उसने भी रान पर हाथ मारा। दोनों पट्ठों ने हाथ मिलाया, सलामी हुई और पीछे हट गए। दाहिना पैर पीछे करके जरा अकड़े तो लोगों में खुसर पुसर होने लगी। वाह, ये भी कोई जोड़ है, हाथी से बछड़े को भिड़ा दिया। 2 मिनट में नूरी की पसलियां पिसी हुई होंगी। ज़हूरी को इस कुश्ती से बड़ा लगाव था। ये सुनकर जल गया। मियाँ जी की जुबान से निकला, देखो कि अजदहे से वह लिपट गया। दोनों पट्टे तड़प तड़प कर अखाड़े में जौहर दिखाने लगे। लोगों की निगाहें इन पर जमी हुई थी। मौके पाकर धौकल ने दांव मारा तो शहजादा उसके आगे आ गया। धौकल ने बाजू भरना चाहा तो शहजादे ने मछली की तरह निकलना चाहा। वह करीब से निकल गया था कि धौकल ने पांव पकड़कर झटका दिया तो शहजादा औंधे मुंह गिरा और धौकल इस पर जा बैठा। उसने बायां घुटना शहजादे की गुद्दी पर रखकर दबाया और दाहिने हाथ से लंगोट पकड़कर चाहा कि इसको जमीन से उखाड़ फेंके। हुसैनी पहलवान, करामत और खास तौर पर ज़हूरी घबरा गए। इधर दूसरी तरफ नारे हैदरी बुलंद हुआ, मगर धौकल को ऐसा लगा जैसे नूरी लोहे की लाट हो गया। उसने भरपूर जोर लगाया तो उसका सिरा अखाड़े में घुस गया। हैदर पुकारा, शाबाश मेरे पट्टे अब ना जाने पाए। इधर हुसैनी ने नूरी को डांटा, बच के। हुसैनी की डांट पर शहजादे ने पांव समेटे तो धौकल ने उखाड़ लिया। उठाकर चाहा कि चित्त मार दे कि शहजादे ने उठते उठते मोड़ ली। अब वे ऊपर हवा में चला। हुसैनी का मुंह आधा रह गया। करामत पीला पड़ गया। ज़हूरी उठ खड़ा हुआ। शहजादा मोड़ लेते लेते कलाबाजी खा गया। नारा हैदरी फिर बुलंद हुआ, मगर लोगों ने देखा कि शहजादे ने कलाबाजी खाकर धौकल की गर्दन पे पांव फंसा दिए। हैदर की जुबान से निकला, अरे! शहजादे ने पीठ पर पांव मोड़ा तो धौकल आप से आप चित्त होने लगा। अब नारा हुसैनी का शोर बुलंद हुआ। धौकल की गर्दन बुरी तरह जकड़ी हुई थी। शहजादा मुस्कुराया, हुसैनी की तरफ देखा। इसने कुछ इशारा किया तो शहजादे ने पैरों को और ज्यादा जोर दिया। धौकल की जुबान मुंह से बाहर आने लगी। इसके बनाए कुछ ना बन पड़ा था। शहजादे ने पाँव को और मोड़ा तो धौकल ऐसी आसानी से चित कर दिया जैसे कोई सोते बच्चे को चित लिटा देता है। देखने वाले हैरान रह गए। नूरी ये कौन सा दाव किया है? समझ तो कोई न सका, मगर वाह वाह सबकी जुबान पर थी। हुसैनी के पट्टे नारे हुसैनी लगा रहे थे। हैदर चुपचाप बैठ रहा था। ज़हूरी अखाड़े में कूद पड़ा। उसने भाई को कंधे पर बिठा लिया। मियाँ जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब कायदे के मुताबिक हुसैनी और हैदर को लकड़ी खेलना थी। फिर फेरी गद का बाना पट्टा
बैठी और सारे हथियार अखाड़े में रखे थे। हैदर ने उठकर फरी गद का उठा लिया। हुसैनी उधर चला तो शहजादे ने हाथ पकड़ लिया और कहा, उस्ताद, शागिर्दों के होते हुए आप तकलीफ क्यों करते हैं? हैदर पहले मुझसे गद छीन ले तो आपका सामना करे। हैदर के लिए ये बात बड़ी गैरत की थी। उसकी आंखों में खून उतर आया। ज़हूरी, करामत, हुसैनी, सारे लोग नूरी को देख रहे थे। पागल हुआ है क्या? कई आदमियों की जुबान से निकला। मियाँ जी बड़े इत्मीनान से बैठे ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने हुसैनी से कहा, क्या हर्ज है, इसकी हसरत निकल जाने दो। हुसैनी अलग हट गया। हैदर ने गुस्से में ये भी ना देखा कि एक लड़के का सामना कर रहा है और लड़का भी वह जो अभी थक चुका है। ज़हूरी ने एतराज़ भी किया लेकिन शहजादे ने कहा, भैया बैठकर तमाशा देख क्या होता है। हैदर पहलवान और नूरी में पहले फरी गत का हुआ। 20वें हाथ पर नूरी ने हैदर का गत का हवाई कर दिया। हुसैनी नारा मारा। हैदर शर्मा गया। उसने बढ़कर बाना उठा लिया। शहजादे ने भी एक बाना थामा। तड़ तड़ की आवाज़ें आने लगी। एक बार हैदर ने वार किया तो शहजादा बैठ गया। उस्ताद, उंगलियां बचाओ कहकर बैठे बैठे नीचे से हाथ मारा तो उसके बाने की मूठ हैदर की उंगलियों पर पड़ी। ये बड़ी करारी चोट थी। बाना उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। शहजादे ने बढ़कर इसका बाना उठा लिया और हुसैनी के आगे लाकर रख दिया। नारे हुसैनी फिर बुलंद हुआ। शहजादे का ख्याल था कि अब तलवार और सेफे के हाथ हो, मगर वहाँ हैदर की उंगलियों पर सख्त चोट आई थी। ये देखकर शहजादे नूर ने अनोखी बात की। वह हैदर की तरफ बढ़ा और जाकर उसके आगे झुक गया और बोला, आप भी मेरे उस्ताद हैं, गुस्ताखी माफ़ करें। हैदर बड़ा गैरतदार पहलवान था। दरअसल वह सच्चा पहलवान था। उसने नूरी को अपने आगे झुके हुए देखा तो उसका गम गुस्सा जाता रहा। उसने नूरी को गले लगा लिया और हुसैनी को मुबारकबाद दी कि बड़ा अच्छा पट्टा तैयार किया। लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि नूरी इतना कुछ ज़रा सी उम्र में कैसे सीख गया। करामत और ज़हूरी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अलबत्ता मियाँ जी को ज़रा भी ताज्जुब ना था। वे तो जानते थे कि शाही अखाड़े का पट्टा, वह भी शहजादा, उसके सामने हैदर पहलवान क्या चीज़ है। ज़हूरी नूरी को कंधे पर बिठाकर घर ले चला। नूरान ने दौड़कर माँ को खबर सुनाई। माँ, नूरी ने हैदर से बाना छीन लिया। अरे हट छुटी, सच्ची सच्ची माँ। इतने में करामत तो ज़हूरी पहुंच गए। अनवरी ने राई नून उतारा। ज़हूरी कोठरी में गया। उसने 10 रुपये निकाले। दौड़कर अब्दुल्ला बाजार की दुकान पर गया। वह दो बढ़िया तहमत, 2 कुर्तों का कपड़ा, 2 पगड़ियाँ खरीदी। हलवाई के यहाँ से 2.5 सेर मिठाई ली और सीधा अखाड़े पहुंच गया। 10 रुपये में इतना सामान आ गया। वहाँ हुसैनी और हैदर बैठे मोहब्बत से बातें कर रहे थे। कुछ पट्टे भी मौजूद थे। हुसैनी कह रहा था, मुझे ये पसंद नहीं आया कि नूरी ने आपसे गुस्ताखी की। मैं कल उसे आपका शागिर्द करा दूंगा। इतने में ज़हूरी पहुंच गया। उसने नजराना पेश किया। हुसैनी ने वह सब हैदर के सामने रखा और बोला, हैदर, मैं अब बुढ़ापे में कदम रख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अखाड़ा तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ। हैदर सुनकर नहीं करता रहा, लेकिन हुसैन ने अपनी लंगोट उसके कांधों पर टाल दिया और ऐलान करा दिया कि हैदर गांव भर के पट्टों का उस्ताद है। हैदर ये देखकर मोहब्बत से हुसैनी के गले लिपट गया। बोला, आज से तुम मेरे बड़े भाई। और उसकी आंखों में आंसू झलक आए। इस ऐलान से गांव भर के लोग खुश हो गए। झपट्टा शाह कह रहा था, नूरी पर जिन आता है। मैं साफ देख रहा था कि जिन नूरी की मदद कर रहा है। झपट्टा शाह की बकवास सुनकर मियाँ जी ने कहा, वह नूरी को नहीं पहचान सका तो जिन को भला क्या देख सकेगा। नूरी को पहचाना ही नहीं। नूरी की नमाज। अरे कुर्बान जाओ हुजूर बेगम, ज़रा मुलाक़ता फरमाएं। हुजूर बेगम उस वक्त उसी सोच में थी। आवाज़ सुनकर देखने लगी। सूसन, नसरीन, नस्तरन, बहार, गुंचा, जहन और नरगिस वगैरह ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराने लगी। क्या है, क्यों खिली जा रही हो सब? सदके जाऊँ, ज़रा तकलीफ़ फरमाएं। गंचा जहन मुस्कुराती हुई बोली, अरे नरगिस, क्या देखा तुम सब ने? आई चश्म बद्दू, ज़रा शहजादे हुजूर को देखिए चलकर। क्यों, क्या कर रहा है? अल्लाह शहजादे पर वलियों का साया रखे। वह तो मोलसरी के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज? हुजूर बेगम नमाज का नाम सुनकर घबरा गई। जी हुजूर, बिल्कुल, ज़रा तशरीफ़ ले चलिए। देखिए तो इस वक्त चेहरे पर नूर बरस रहा है। सूसन ने अर्ज़ किया, तुमने उसे कभी और नमाज पढ़ते देखा है? हुजूर बेगम ने नरगिस से पूछा, सरकार, कई बार। फिर बताया क्यों नहीं? सरकार, गलती हुई, बच्चों का खेल समझकर टाल दिया। तुमने उससे इस बारे में बातें तो नहीं की? ऐ कुर्बान जाऊं, हमारी ये जुर्रत कब हो सकती है? आज आकर क्यों बता रही हो? इसमें तुम्हारी
خوشی کا سبب کیا ہے سرکار؟ آج تو شہزادے کو نماز پڑھتے دیکھ کر ایسا جی چاہ رہا ہے کہ ہم سب بھی نماز پڑھنے لگیں، آخر ہم سب بھی تو مسلمان ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ حضور بیگم باتیں کرتی ہوئی مولسری کے پاس پہنچی۔ نوری بڑے دھیان سے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور بیگم کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ نوری نے سلام پھیرا۔ حضور امی کو دیکھا تو اس طرح گھبرا گیا جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ وہ دوڑ کر قدموں میں آ گرا۔ صدقہ حضور بیگم کی زبان سے نکلا۔ وہ نوری کو لے کر خاص محل کی طرف چلی۔ 7 توڑے اشرفیاں، 11 قسم کے تھان، 21 من مٹھائی، 40 رنگ کے پھل، شاہی محل کے سارے پودوں کے پھول، 60 اونٹ، غلہ اور نہ جانے کیا کیا حضور بیگم کے سامنے پیش ہوا۔ کم ہے، حضور بیگم کی زبان سے نکلا۔ بیگمات اور لونڈیاں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ سوسن زیادہ منہ لگی تھی، ہمت کر کے آگے بڑھ کے بولی، اے قربان جاؤں، اشارہ پاؤں، آسمان سے تارے توڑ لاؤں؟ حضور بیگم مسکرانے لگی۔ شاہی محل کے سارے لوگوں کے لیے جوڑے تیار ہوئے۔ تم لوگ ہمارے جوڑوں میں اپنی اپنی پسند کے کپڑے پہن کر حاضر ہو، اور دیکھو محل میں اعلان کرا دو کہ اس سال رمضان المبارک میں شہزادہ پہلا روزہ رکھے گا۔ اس دن سارے چھوٹے بڑے روزہ رکھیں گے اور شہزادے کے ساتھ افطاری کریں گے۔ اس سے صدقے جاؤں، قربان جاؤں، شہزادے کو نماز پڑھتے دیکھا گیا تھا۔ بلائیں لی جانے لگی۔ امام یحییٰ صاحب کی خدمت میں خوان اور خلعت بھیجا گیا۔ حضور بیگم کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جانے لگی۔ شاہی محل میں اچھی خاصی تقریب ہو گئی۔ نرگس نے سوسن کو تاکا، کچھ اشارہ کیا۔ وہ سب حضور بیگم کے سامنے محفل سما سجا کر بیٹھ گئیں۔ سوسن نے نعت شروع کر دی، مدینے کو جاؤں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جاؤں۔ سوسن نے ابھی مصرع مکمل نہ کیا تھا کہ گنچا ذہن نے منہ کھولا۔ اس نے مصرع اٹھایا، مدینے کو جاؤں۔ غنچہ ذہن کے منہ سے بہار نے مصرع چھینا، آہے واہ، مدینے کو جاؤں، مدینے کو جاؤں۔ پھر تالیوں کی چھاپ پر سب نے قوالی کو لے اڑائی، مدینے کو جاؤں یہ جی چاہتا ہے۔ 4-5 بار سب نے مصرع گایا۔ اس کے بعد سوسن نے شعر مکمل کیا، مدینے کو جاؤں یہ جی چاہتا ہے، مگر پھر نہ آؤں یہ جی چاہتا ہے۔ سب نے تالیوں کے تھاپ پر شعر گایا تو سما بن گیا۔ حضور بیگم نے ایک تھیلی نوری کی طرف بڑھا دی، نوری نے سوسن کی طرف بڑھا دی۔ دیر تک یہی شعر گایا جاتا رہا۔ نوری بیٹا سنتا رہا، دل میں کہہ رہا تھا، اللہ اللہ، یہ شان بادشاہوں کی، ذرا ذرا سی بات پر یہاں کیسے کیسے ٹھاٹھ ہیں۔ حضور بیگم کی طرف سے 3 توڑے انعام دیے گئے، مگر سچ پوچھو تو نوری کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جمائی لی۔ حضور بیگم سمجھ گئی، بولی، خلعت، اطلس و کمخواب کے 11 جوڑے پیش ہوئے اور حضور بیگم نے ان گانے والیوں کو ایک ایک جوڑا انعام میں دیا۔ محفل برخاست کر دی۔ حضور بیگم اس طرح نوری کو نماز کا حال ظاہر ہونے دیا۔ اس خوشی میں حکم دیا کہ شاہی محل میں نماز کا بندوبست کیا جائے۔ لیجیے، نوری نے سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ وہ بھید کھل جانے کے ڈر سے نماز کھل کر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضور بیگم کی تدبیر سے یہ کانٹا بھی دور ہو گیا۔